Hello students. First of all, I would like to thank all the students for sending your good wishes. I'm perfectly fine. आप लोगों की दुआओं से just a small थोड़ा सा stomach infection and all that. I hope your examinations went very well. सभी questions easy थे as I told you. I hope you all gave the examination honestly because honesty is the best policy. अगर आप वो करते हो तो definitely you will get success in the life. So from today we are going to start with your new chapter, that is planning. In the planning we are going to study about the meaning and the characteristics of planning. So let us start with our topic today. Okay, so today we are going to start with your chapter number 3. So before we start, let us understand about the blueprint of this chapter कि भाई कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं. That would be ठीक है. So from this chapter, as per the last year blueprint, this year it might change because of this corona epidemic, but last year तक there were 2 questions, 1 mark के 2 क्वेश्चन है ना, MCQ और 1 मार्कर. अगर 2 MCQ या तो 2 MCQ आएंगे या 1 MCQ 1 1 मार्कर, 2 questions of 1 marks will be asked from this chapter. So that will be your total 2 marks, and 1 question of 5 marks will be asked from this chapter. ठीक है. So this chapter is important in context of 5 markers. 5 markers के लिए ये chapter important है. ठीक है. So ये चीज़ आपको याद रखनी है. So let us start with our chapter. सबसे पहले the word planning. This is not something new. Each and every of you have heard this word, about this word. सब लोगों ने इस वर्ड के बारे में सुना है, इसके बारे में सोचा है, बहुत बार आपने प्लान किया है. यू प्लान्ड अ पिकनिक, अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक प्लान किया है. यू प्लान्ड टू गो टू आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान किया है ना. सो वी प्लान इन आवर डे टू डे प्लान करते हैं. चलो यार कुछ प्लानिंग करो ना, कुछ अच्छा करते हैं. यस और नो. तो वी प्लान राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना. ठीक है, सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एपिडेमिक. तो हर इंसान प्लानिंग कर रहा है. तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अगर इफ़ अ पर्सन ही थिंक्स वेल इन एडवांस, हम जब पहले से सोचते हैं ऑन द मैटर्स लाइक हु विल डू द वर्क, what type of you can say who will do the work, what type of work, how, when and what to what extent, that is known as planning. Planning is the forecast of future in present on the basis of past. On the basis of past. Whether it is a battlefield, playground, business unit, political institute, religious institute, social institute, everywhere. ठीक है, एवरीवेयर आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप तिरुपति बालाजी का मंदिर देखो ना, तो वहाँ पे यू कैन से एवरी डे hundreds and thousands of people are coming to as the devotees they are coming. So how they manage all those people, वहाँ पे कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे भीड़ भड़का ना हो, ये सब कुछ प्लान करना पड़ता है. सोशल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल, तो स्कूल को हमको प्लान करना पड़ता है ना. योर टाइम टेबल, योर एग्जामिनेशन, एवरीथिंग वी नीड टू प्लान. School need to plan, you can say playgrounds need to plan, battlefields that needs a planning. So it is not, planning is not something which is related to or only for business. It is a universal activity. Planning हर इंसान करता है. कोई पैसे के लिए करता है, कोई you can say family के लिए कर रहा है. ठीक है, they plan for save money for the family, है ना. तो सेविंग मनी, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो करते हैं इन वो आप लेते हो, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं. वी टेक इंश्योरेंस. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग. ठीक है. लेट अस मूव फर्दर. प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. प्लानिंग इज ऑलवेज अबाउट प्लानिंग इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है. इट इज़ नेवर इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में कभी नहीं होगी. प्रेजेंट में तो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लान. इन प्रेजेंट वी हैव एप्लीकेशन ऑफ प्लान. ब्रश बहुत छोटी हो गई.
ठीक है. सो एप्लीकेशन इज ऑफ प्लान इज डन इन द प्रेजेंट. ठीक है. सो प्लानिंग वो है, उसके अलावा क्या है, टू select the best alternative. Planning is to select, there are large number of alternatives available to do an activity, but on the basis of you can say your knowledge, efficiency, your goal, you decide the best one and that you will select and that you will implement for the future. अब जैसे पास होने के भी बहुत ऑप्शंस है, कॉपी करके पास हो जाओ, है ना, या फिर टीचर को ब्राइब करके पास हो जाओ, या फिर पढ़ाई करके पास हो जाओ. स्टडी एंड पास. अब आपको डिसाइड करना है कि भाई हमको स्टडी करके पास, कॉपी करके पास हो जाओगे, चलो. बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? जब फ्यूचर में जॉब करने जाओगे, यू आर स्टडिंग फॉर व्हाट? फॉर योर फ्यूचर. जब फ्यूचर में स्टडी करने ही जाओगे, अब यही चीज़ अगर प्लानिंग, आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ प्लानिंग और आपको नहीं पता प्लानिंग, तो बोलेंगे तुझे प्लानिंग का मतलब नहीं है, तू प्लानिंग क्या खाक करेगा, एंड यू विल नॉट गेट द जॉब. सो यू आर नॉट स्टडिंग जस्ट टू गेट मार्क्स, यू आर स्टडिंग फॉर योर फ्यूचर एज वेल. Okay, fine. So let us move further. Let us see some definitions given by two you can say different authors. आप इसमें से any 2 or 3, 2 ही दिए, वैसे तो 2 ही है, तो दोनों ही लर्न कर लेना. Planning is the task of choosing what from different alternatives. जो भी आपके alternatives है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, ऑल्टरनेटिव 1, 2, 3, 4. यू हैव टू चूज़ 1, 2, 3, 4 में से आपको कोई भी एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है. टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. जॉर्ज टेरी के हिसाब से प्लानिंग इज अ मीन्स अजम्पशंस ऑफ रिजल्ट, पॉलिसी टू फॉलो, फंक्शन, स्टेजेस टू डिसाइड एंड मेथड टू बी फॉलोड. उसका मतलब है प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ assumption for the result. We assume because it is something about future. ये आज नहीं हुआ है, we assume कि if I will do this then the result would be, you can say what I expect. आपको आपका expected result पहले से decide करना है कि भाई मैं 5 घंटे पढ़ूँगा, if I study 5 hours a day I will get 80 marks. ये मेरा assumption है. ठीक है. ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. ठीक है. Policy to be followed. कौन सी पॉलिसी आप फॉलो करोगे to achieve the target, and stages to be decided and methods to be followed. All these things are decided pre-hand by in the process of planning. Planning में हम methods decide करते हैं, stages decide करते हैं, we decide what would be the result, assumed result, what would be our policy, everything is decided here. ठीक है. This is all about planning. Planning is an intellectual process. It is not कोई छोटा बच्चे के बोलते ना, बच्चों के काम की चीज़ नहीं है. इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ नॉलेज चाहिए आपको लिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. द पर्सन हु इज़ हैविंग नॉलेज, एक्सपीरियंस, और यू कैन से ही इज़ हैविंग फोरकास्टिंग पावर. जैसे कोई अगर आपका कोई पिकनिक प्लान कर रहा है तो कोई बड़ा ही प्लान करेगा जिसको बाहर जाने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है. ठीक है. अनएक्सपीरियंस पर्सन को हम कोई भी काम करने देंगे नहीं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव टू गो प्लान अ मैरिज, जब हमको कोई मैरिज प्लान करना होता है इन अ फैमिली, तो जो भी बड़े लोग होते हैं ना, they decide everything and the younger one they follow the instruction. So planning is given to the intelligent people, the older generation, so that money is not wasted. ठीक है. तो it is an intellectual process which requires proper understanding about the future. Okay, let us move further. Characteristics of planning. As I told you, in this chapter you will have maximum long questions, so it is very important for you to remember all the headings and everything. ठीक है. तो headings सब आप learn करते रहिए. साथ साथ में सबसे पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस. इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब इट इज़ नॉट ओनली इन बिजनेस, इट इज़ इन पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन, सोशल, साइकोलॉजिकल, एवरी फील्ड इट यू विल फाइंड प्लानिंग. प्लानिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. आप अपने घर पे बैठ के भी अभी कोई ना कोई प्लान कर रहे होगे कि भाई मैं कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा. मम्मी पापा प्लान करते हैं, दादा दादी प्लान करते हैं, एवरीवन प्लान्स. इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. बिग स्मॉल एवरीवन विल मेक अ प्लान अबाउट फ्यूचर. एवरीवन थिंक्स अबाउट द फ्यूचर.
ठीक है. सो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टूवर्ड्स द बिजनेस. ये सब बिजनेस से ही यू कैन से लिमिटेड नहीं है. इट इज़ अ वाइड थिंग. बट येस, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग इज़ अ फादर ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स. यू कैन से फादर ऑफ कंट्रोलिंग एज सच. प्लानिंग को क्या कहा गया है? फादर ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है. तो ये भी है कि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस. एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सबके पहले सभी जो भी एक्टिविटीज़ है उससे पहले हमको प्लान करना पड़ता है. ठीक है. ओके, लेट अस मूव फर्दर. प्राइमरी फंक्शन देखो, मैंने पहले में एक्सप्लेन कर दिया. इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन. ऑल अदर फंक्शंस कम आफ्टर द प्लानिंग फंक्शन. पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. All these functions are done after planning. पहले planning, then these functions will be there. Next is it is a conscious and mental process. It is not just something which is done subconsciously. Subconsciously मतलब मैं आपको बोलती हूँ, हम subconscious कब होते हैं? नींद में. तो ऐसा नहीं कि नींद सोते सोते हमको सपना आया और मैंने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दी. नो, इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट्स. हम लोग साइंटिफिक पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं. कैसी पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं? साइंटिफिक मेथड. कैसे? कौन सी मेथड्स हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल सर्वे करते हैं. वी डू अ सर्वे. ठीक है. वी डू मार्केटिंग रिसर्च, है ना, मार्केट रिसर्च. हम लोग पहले ये रिसर्च और सर्वे करते हैं. आफ्टर दैट वी डिसाइड दैट what would be my planning. So it is a conscious, it is not something subconscious and a mental process. It is something we think. Planning is to think. ठीक है. प्लानिंग के टाइम पे हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे. सो प्लानिंग इज़ अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस. ठीक है. बिकॉज इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव अजम्पशन. साइंटिफिक मेथड से हम लोग एक अजम्पशन बनाते हैं और उसको उसके चांसेस ऑफ यू कैन से सक्सेस इज हाई इफ़ योर मेथड इज़ राइट. ठीक है. प्लानिंग इज़ नेवर रॉन्ग. कई लोग बोलते हैं ना प्लानिंग इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम. प्लानिंग इज़ नेवर रॉन्ग. ये कोट है, बहुत अच्छा है. आप प्लानिंग के एडवांटेजेस मिलते हैं. प्लानिंग इज़ नेवर रॉन्ग, प्लानर इज. प्लानिंग गलत नहीं होती है, प्लान बनाने वाला गलत होता है. उसकी गलती की वजह से प्लान फेल होता है. ठीक है. लेट अस मूव फर्दर. फ्लेक्सिबल. योर प्लान नीड्स टू बी वेरी. अच्छा, ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है. ठीक है. मैं लिख देती हूँ. आप हर पॉइंट में, जैसे प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, ऑर्गेनाइजिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, स्टाफिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, डायरेक्टिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, एवरीथिंग नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल. इफ़ यू आर रिजिड, ठीक है. फ्लेक्सिबल मतलब चेंज विद द चेंज इन एनवायरनमेंट. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है एपिडेमिक चल रहा है, तो अगर मुझे ट्रैवल करना है तो नॉर्मली आई वुड ट्रैवल बाय ट्रेन. वाई? ट्रेन बेटर है, जल्दी पहुंचा देती है और एक्सीडेंट के चांसेस कम हैं और सेफ भी है, सिक्योर भी है. बट एज एपिडेमिक इज़ गोइंग ऑन, आई विल नॉट टेक ट्रेन, आई विल टेक माई ओन व्हीकल. क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम एनी इन्फेक्शन. ट्रेन में क्या है? इट इज़ अ पब्लिक प्लेस. रेलवे स्टेशन पब्लिक प्लेस है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. कई लोग इन्फेक्शन वाले आ सकते हैं जिससे मैं बीमार पड़ सकती हूँ. सो आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल. अगर एपिडेमिक है फिर भी मैं यही ज़िद करूँ कि नहीं, मैंने प्लान किया था कि मैं ट्रेन में जाऊँगा तो मैं ट्रेन में ही जाऊँगा, तो दैट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू चेंज. सो वैसे ही अगर आपने कोई प्लान बनाया है और आपको लगता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अ चेंज, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी. हमेशा प्लान ए के साथ में हम लोग बनाते हैं प्लान बी नहीं चलेगा तो सी नहीं तो डी नहीं तो ई. वी ऑलवेज हैव प्लान बी. व्हाट इज़ योर प्लान बी? सो प्लान बी शोज दैट वी आर फ्लेक्सिबल. ठीक है. वी आर रेडी टू चेंज एज पर द सिचुएशन, एज पर द टाइम. ठीक है. इट इज़ नॉट अ स्टैटिक, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट, इट इज़ अ flexible, you can say process. It should be a flexible process. Let us move further. Planning should be precise. Precise का मतलब है to the point. बातों को घुमा फिरा के हमको कोई नॉवल नहीं लिखनी है. टू द पॉइंट आपको बताना है what is right, what is wrong, what should be accept, you can say done, what should not be done.
और कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन यू नीड टू मेक अ प्रिसाइज कंक्लूजन ऑफ डूज एंड डोंट्स। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक उसका एक प्रिसाइज कंक्लूजन हम करेंगे। ठीक है, दैट इज़ योर यू कैन से प्रिसाइजनेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ योर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। यही होगी शायद स्पेलिंग, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, लेकिन ये भविष्यवाणी सिर्फ हवा में हाथ घुमा के नहीं करनी है। यू हैव टू डू दिस फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। हाउ? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर आवर सेल वॉज ऑफ 10 लाख। ठीक है, तब हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था 2 लाख। ठीक है, एट दैट टाइम आवर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वॉज 2 लाख। नाउ वी हैव डन 4 लाख एडवर्टीजमेंट, यानी हमने डबल कर दिया, 2 का डबल 4। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 20 लाख वुड बी माई सेल्स, कि मैंने अगर एडवर्टीजमेंट डबल कर दी तो मेरा सेल्स भी डबल होना चाहिए। ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आई विल सेल 2 करोड़ रुपीज़, दैट इज़ रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, और रॉन्ग फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ विम्स एंड फैंसीज ऑफ योर मैनेजर। मैनेजर की ऐसे ही रात को सपना आया और मैंने कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर फोरकास्टिंग करनी है, प्रॉपर डेटा के बेस पे। ठीक है, दैट इज़ प्लानिंग और सच। नेक्स्ट एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सॉरी, इट इज़ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लान ए, प्लान बी, बहुत सारे प्लान हैं। ठीक है, तो उसमें ऑल्टरनेटिव्स में से हमको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है। व्हाट इज़ योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव? दैट इज़ टू बी चूजन बाय यू। ठीक है, इट इंक्लूड्स plans and alternatives. Many alternatives increase the sales, like future you can say advertisement है, या फिर reduction in the price और training of the salesman. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहूँगी? शुड आई इंक्रीज द एडवर्टीजमेंट और डिक्रीज द एडवर्टीजमेंट, और शुड आई रिड्यूस द प्राइस और इंक्रीज द प्राइस, शुड आई ट्रेन द सेल्समैन और शुड आई नॉट ट्रेन द सेल्समैन, शुड आई डिक्लेयर अट्रैक्टिव ऑफर्स और शुडंट आई डिक्लेयर अट्रैक्टिव ऑफर्स। आपको चूज़ करना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर मी। इस फ्यूचर में मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो यू हैव ऑल द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू। प्लानिंग में आप उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो कि भाई ये ऑल्टरनेटिव सही है फॉर एग्जांपल, और ये अल्टरनेटिव सही नहीं है। मैं प्राइस नहीं रिड्यूस करूँगा, ठीक है, मैं सेल्समैन को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, बट आई विल इंक्रीज द ऑफर्स ऑफ सेल्स, ये मैं करूँगा, एंड आई विल इंक्रीज द एडवर्टीजमेंट। सो दिस 2 ऑल्टरनेटिव्स आई सिलेक्ट, दिस 2 आई रिजेक्ट। So you have to make list of alternatives and then you have to select and reject the alternatives. Let us move further. Concerned with future. Planning is always for future. किसके बेस पे? On the basis of past. और कब होता है? In present. Planning is done in, you can say, present on the basis of past for future. So planning is always future, for a future which is always uncertain. But we have to use our knowledge, our scientific principles, and you can say knowledge about knowledge of different areas, so as to make it 100% successful. ठीक है, to get the 100% success you need to have the scientific, you can say, behavior. You should not be autocratic, है ना. Next is, it is a continuous process. Once you get the success, does not mean it ends. It starts from womb to tomb. Womb मतलब when we come in your, you can say, in this earth, पहले हम लोग you can say we are in womb, और जब हम मरते हैं तो जो कब्र होती है that is tomb. तो मतलब it starts from the beginning of the business, जब business begin करता है, to end. जिस दिन मैंने रिलायंस कंपनी स्टार्ट हुई तब से उसकी प्लानिंग शुरू हुई है, अभी तक है,
तब तक रहेगी जब तक वो कंपनी बंद नहीं हो जाती. तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस till the end of the organization. Every time, even when we start, we have to do planning. When we stop, we have to do planning. So planning is a required, you can say, thing in different circumstances, and it should be, you can say, you should never leave planning. आप ऐसा सोचो 2 साल प्लानिंग कर दी, for first 2 years you planned, है ना, और अब हर साल वही प्लान को रिपीट करते रहे, नहीं. You need to make your plan, you can say, changeable, है ना, फ्लेक्सिबल. जो मैंने बोला था, अगर आपका प्लान रिजिड हो जाएगा तो 2 साल, जो 2 साल फर्स्ट 2 years में जो सही था, इट मे नॉट बी राइट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. सो इट मे बी आउटडेटेड. वो क्या हो जाएगा? आउटडेटेड. कोई भी प्रोडक्ट है वो आउटडेट हो जाएगा. तो आपको अपने आप को डेवलप करते ही रहना है विद न्यू मेथड्स. ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस वी हैव सीन. Then we have objective oriented activity. Why is it objective oriented activity? Planning starts with deciding goal. First you have to set the goal. What do you want at the end of this plan? पहले मैं इस प्लान के एंड में चाहती क्या हूँ, पहले वो मैं डिसाइड करूँ. उसके बाद मैं देखूँगी कि what would be my planning. If you want that your children should study, so my plan would be different. And if I want that my child should play, then my plan would be different. ठीक है, मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे तो मेरा प्लान अलग होगा. मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा खेल कूद में जाए तो मेरी प्लान अलग होगी. तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन यू हैव टू decide your, you can say, planning and all other activities. So it is a goal oriented activity, objective oriented activity. ठीक है. Decision, next point is it requires decision process. Decision किस चीज़ का? Of giving plan A. जो भी आपके प्लान है उसमें से आपका प्लान A क्या रहेगा, प्लान B क्या रहेगा. सपोज आप बोलोगे कि मुझे 11th के बाद में आई वॉन्ट टू बिकम CA. अगर मेरा CA क्लियर नहीं होगा तो आई विल गो फॉर CS. अगर CS नहीं होगा आई विल गो फॉर MBA तो हो ही जाऊंगी, है ना. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं MBA करना चाहती हूँ, अगर मैं MBA नहीं कर सकी देन आई विल गो फॉर CA, देन आई विल गो फॉर CS. तो यू हैव टू डिसाइड विच विल बी योर फर्स्ट प्लान, सेकेंड प्लान एंड थर्ड प्लान. ठीक है, तो ये डिसीजन आपको पहले से ही लेना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू do. You have to select the best alternative and then grade it as 1, 2, 3. The best would be first, second and the third would be the, you can say, the one which is the least important for you. Fine. जैसे for example छुट्टी है तो पहला ऑप्शन ये रहेगा कि I would meet my friends. ठीक है. अगर सेकेंड ऑप्शन रहेगा I would watch a movie. थर्ड ऑप्शन I will do nothing. ठीक है. तो this is how it is done. तो require decision process. उसके अलावा अदर थिंग्स हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम लोग देख लेते हैं फिर से. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू प्लानिंग. द फर्स्ट रीज़न वुड बी इट हेल्प्स यू टू डू द थिंग्स सिस्टमेटिकली. हम प्लान ए प्लान बी बना लेते हैं, स्टेप्स बना लेते हैं तो इट बिकम्स ईजी. वेस्टेज कम हो जाता है बिकॉज बिफोर हैंड वी थिंक व्हाट वी विल डू विथ व्हाट, है ना. हम किस चीज़ का क्या हाँ कैसे उपयोग करेंगे हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है. Sorry, it reduces future uncertainties because we make all the analysis कि every situation कि भाई अगर बारिश आएगी तो क्या करेंगे, बारिश नहीं आएगी तो क्या करेंगे. ठीक है. तो that is we have decided कि भाई अगर boom होगा for example if there is a boom in next year what will be my strategy. अगर depression होगा तो what will be my strategy. तो मैंने बूम के लिए यानी इन्फ्लेशन के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई है, डिप्रेशन के लिए भी बनाई है. ठीक है. प्रिसीशन मतलब जो चीज़ें हमें नहीं करनी है उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं. दिस आर द थिंग्स वी विल नेवर डू, दिस आर द थिंग्स वी विल डू. तो इट बिकम्स प्रिसाइज टू द पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इज योर इट हेल्प्स यू टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स, योर गोल. इट स्मूदर्स अदर मैनेजरियल फंक्शन. एक बार प्लानिंग बनाने में अगर आपने टाइम see, some people says that planning is a wastage of time, but other experts say if you don't plan then everything will be wasted.
अगर आप प्लान करोगे तो येस योर टाइम विल बी वेस्टेड, आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा उसमें भी यूज़ होगा, दैट इज़ ट्रू। बट अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी वेस्टेड। सो इट इंक्रीजेस द, you can say, smoothness of managerial functions and reduces wastage, increases the cooperation and coordination of the employees because they know what to do, they are not in a dilemma, and they also know कि if I will do this, what would be what would I achieve, so that helps him to get the us to get the एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन। मतलब वो बोलेंगे ये पॉलिसी से हमारी कंपनी का 20% प्रॉफिट बढ़ेगा फॉर एग्जांपल ये प्लान से, और आपका इंक्रीमेंट 5% होगा, तो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट कि भाई आप काम करो, आपको 5% इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल बिकम पॉसिबल, एज आई टोल्ड यू, प्लानिंग इज़ अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज़ फादर ऑफ कंट्रोलिंग। Why is it said so? Because planning, first of all we plan, है ना, देन वी सुपरवाइज, हम सुपरवाइज करते हैं कि भाई काम एज पर प्लान हो रहा है नहीं। अगर वो काम एज पर प्लान नहीं होता है, इफ़ इट इज़ एज पर प्लान नो नीड टू डू एनीथिंग, अगर नहीं होता है देन वी कंट्रोल। एग्ज़ाम में आप पेपर लिख रहे हो, कॉपी करोगे तो मैं आपको बोलूँगी, नहीं करोगे तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो इफेक्टिव कंट्रोल इज़ पॉसिबल क्योंकि मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन दिया है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कॉपी, तो मैं उसको चीज़ को फॉलो करूँगी, तो इफेक्टिव कंट्रोल विल बी पॉसिबल। प्लानिंग हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो भी है, जितनी भी अदर वो एक्टिविटीज़ है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, all can be controlled with the help of planning. Okay, so these are the this is all about your what we say, characteristics of planning. I want all of you to complete this and write the question as ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखिएगा। What is planning? Explain it with the help of its characteristics, ठीक है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू जस्ट मैसेज मी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे होम, stay safe. Goodbye for now, students.